Hello everyone, welcome to Do Dream. This is the NCRT book series. There are many exams of Public Service Commission in the coming months. I would like to do this kind of favor for the beginners who stepped in preparing for Public Service Commission exam. Basically, BPSC exam date has been published already and UPSC exams date is fixed on 5th of June. In this video, primarily I would read the lesson in English language but keep on translating into Hindi paragraph wise. In this video, I am bringing to you the NCERT reading session. We will read class 6 geography chapter 4 the maps. Kindly feel me sitting next to you and reading it together at the same time. Let's start the video. Maps. You have learnt in the previous chapter about the advantages of a globe. However, globe has limitations as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. But when we want to study only a part of the earth as about our country, states, districts, towns and villages, it is of little help. In such a situation, we use maps. A map is a representation or drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. But it is impossible to flatten a round shape completely. आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, अपने राज्यों, जिलों, शहरों और गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का, मैप्स का उपयोग करते हैं। मैप्स पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोल आकार के सतह को पूरी तरह से चिपटा करना असंभव है। We find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. When many maps are put together, we get an atlas. Atlases are of various sizes, measurements drawn on different scales. Maps provide more information than a globe. They are of different types. Some of them are described below. मानचित्र हमारे विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे छोटे क्षेत्र को तथा कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मैप्स में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है, जैसे पॉलिटिकल मैप्स। Maps showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical or relief maps. भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। पॉलिटिकल मैप्स showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. राजनीतिक मानचित्र जैसे राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है।
Thematic maps. Some maps focus on specific information, such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forests, industries, etc., are known as thematic maps. Suitable ideas are given on the basis of information provided in these maps. There are three components of maps: distance, डायरेक्शन एंड सिंबल। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मैप्स को थीमेटिक मैप्स कहा जाता है। इन मैप्स में थीमेटिक मैप्स में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। इसके तीन घटक हैं, जैसे दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, डिस्टेंस। मैप्स आर ड्राइंग्स which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. Or we can say maps are drawn to reduce scales. But this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. For example, the distance between your school and your home is 10 km. If you show this 10 km distance by 2 cm on a map, it means 1 cm on the map will show 5 km on the ground. The scale of your drawing will be 1 centimeter is equal to 5 km. Thus, scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. मानचित्र एक रेखांकन होता है, आरेखन होता है, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए यह इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक रूप तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground. It is called a small scale map. जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है और इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। When a small area like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale that is 5 centimeter. On the map shows 500 meters only on ground. It is called a large scale map. जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है।
इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इंफॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल मैप्स। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्रदान करते हैं। Direction. Most maps contain an arrow marked with a letter N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out other directions. For example, east, west, and south. There are four major directions: north, south, east, and west. They are called cardinal points. Other intermediate directions are northeast, southeast, southwest, and northwest. We can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions. अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसा कि चित्र 4.2 में चार मुख्य दिशाओं जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को दर्शाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। बीच की चार दिशाएं जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। इन द फिगर 4.1 we have to locate the directions of this map. चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाना है, जैसे विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। दूसरा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। We can find out the direction of a place with the help of compass. It is an instrument used to find out main directions. It is magnetic needle, always points towards north-south direction. कंपास की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। कंपास एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इनकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। Symbols. It is the third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of the different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines, or a whale. So, they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures, and lines. These symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simply to read. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from maps with the help of these symbols. Maps have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. Some of the conventional symbols are shown in figure 4.3. यह किसी भी प्रतीक किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वह निश्चित अक्षरों, छायाओं
और रंगों और चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के सिंबल्स के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों सिंबल्स के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है और ये कन्वेंशनल सिंबल्स कहे जाते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए, वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पसेस। For example, generally blue is used for showing water bodies, brown for mountain, yellow and plateau and green is used for plains. विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। स्केच A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale and is called a sketch map. रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे रेखांकन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा रेखांकन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे रेखांकन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे स्केच कहते हैं, स्केच मैप कहते हैं। प्लान, खाका। A plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room, which can't be shown in a map. At the time, we can refer drawings drawn to scale called a plan. एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र प्लान कहलाता है, खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत से जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक मानचित्र रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे प्लान कहा जाता है, खाका कहा जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I will bring the next chapter of class 6 geography tomorrow.